हाय एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड। यहाँ पे आज मैं बात करूंगा सेल्स पे। दिस इज मी जसप्रीत। आप सब लोग देखते हो तो आई नेवर इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। कई लोग तो मुझे सिर्फ एज अ ट्रेडर देखते हैं, एक एज अ यूट्यूबर देखते हैं। बट लेट मी टेल यू, माई बैकग्राउंड इज आई एम फ्रॉम IIT। पोस्ट IIT आई वर्क विद लॉट ऑफ टॉप कंपनीज लाइक जोमेटो, स्विगी, सो ब्लिंकिट जो आजकल बहुत वायरल है। आई वर्क विद वन ऑफ द सीनियर पीपल ऑफ द ब्लिंकिट, Albinder and all. So, but coming back now, this is my first podcast, and we are going to focus on the topic which I am most uncomfortable with. मुझे ये टॉपिक्स में थोड़ा डर भी लगता है, दैट इज सेल्स। यहाँ पे बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेज भी किए थे, क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन बनवाए थे आपसे। तो आई डिड अ रिसर्च, आई गॉट 125 क्वेश्चंस। उनमें से कुछ क्वेश्चंस पिक किए जिसके मैं बात करूंगा। एंड हम लोग दो गेस्ट से पूछेंगे, वन इज आशिमा, वन इज आतिया। एंड दीज आर द entrepreneurs, एंड ये इनकी कंपनी है एलिवेट नाउ। दे आर कंसल्टेंट, बेसिकली दे हेल्प कंपनीज टू ग्रो, whether it comes to digital marketing, whether it comes to sales. They are the people whom you can reach out. मैंने इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया। एंड वी विल स्टार्ट। हम लोग ज्यादा इंट्रोडक्शन में टाइम नहीं लगाएंगे। लेट माय इंट्रोडक्शन, लेट्स जंप टू दिस। सो आतिया, प्लीज कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Sure. Hi, Jaspreet. Hi, everybody out there. Thank you for having us here. So, starting with my introduction, I जिस चीज से लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है सेल्स से, I've done that whole my life. I've been a sales and revenue person. Started with companies, MNCs like Genpact. I moved to edtech, co-working sectors, and from last 3.5 years almost, I've been into creator economy, the economy that has been growing the most in the complete world right now. And then post all of this, we started Elevate Now. Elevate Now is our own baby. It's our business consulting agency for entrepreneurs, solopreneurs, founders, startup owners, people who are struggling. They don't know how to actually start a business, launch a business, or scale a business at any point of time. Now this is a holistic view of scaling any business, not just sales. We have been, people, salespeople, we've been doing sales, but not just sales. We have been helping people with social media, with setting up new sales channels, hiring the right people for their organization, all of that. So that's something that we have done, and we have already worked with 200 plus startups or solopreneurs, and we have helped them scale their business till now. And I look forward to giving that contribution for so many more years, and contributing to the startup economy. Great. So I can say, I can see so many questions which are going to jump on you guys. So let's go to, Ashima. Can you please let us know about yourself also? Sure thing, sure thing. So, hi guys, I'm Ashima Mittal, and I also come from a sales and a marketing background. So, I have completed my master's MBA from Birla Institute of Management, and that is where I opted for a lot of small companies as side businesses, as my side projects that I was doing while I was studying. And that is where I was introduced to AIC, Atal Incubation Center, and all of that. And from there I understood that okay, startup is one thing that is the heart of the new India. And that is where I was like, okay, I want to be a part of this startup ecosystem. And I started my career with companies like Upgrad, which was back then again a startup, and then I continued working with the startups only in different capacities, be it in the marketing, be it in the sales and everything, because I want to understand what is the customer requirement. I always feel that if you're not talking and going to the customer and talking to them one on one, you will never ever understand what is the pain point and what you are trying to solve. And sales is never like, it is always a myth that sales is that you have to sell something, but rather, being a sales professional, I understand that sales is not about selling something rather than solving a problem. And how you solve a problem? Only if you talk to the right people, the right set of questions, what are the problems, and then only you can address them. Yeah. So yeah, this is what I want to do. And that is why we actually introduced Elevate. That me and Atya, we both come from the same psyche, that okay, Ashima, there are so many things that people don't even know and they have the need for it. Be it sales, marketing, everyone wants to be an entrepreneur, but nobody knows what actually an entrepreneur does. First thing, they sell themselves, Yeah. right? So how to do it is something that we would love to talk about. And this is the reason that why we are on this podcast as well, because we want to spread this message to as many people as possible, that don't be afraid of sales. Sale is the life skill and it is not about selling something. So yeah.
आई थिंक आई विल से कि मैंने इसी में से कुछ निकाला अभी कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ द सेल्स. आई विल कम टू दोस पॉइंटर्स आल्सो. एंड जब मैं ये कर रहा था तो एवरीवन आई विल बी टेलिंग यू कि आई एम वन ऑफ द क्लाइंट आल्सो एलिवेट नाउ. सो नाउ कमिंग टू सम ऑफ द थिंग्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट थिंग इज कि शेमलेस, मतलब जब भी मैं सेल्स की बात करता हूँ, वन वर्ड कम्स, इट्स अ रिजेक्शन. वन इज शेमलेस. यू हैव टू नॉक द डोर मल्टीपल टाइम्स. क्योंकि जब मैं सेल्स की बात करता हूँ तो लोग क्या करते हैं कि डर जाते हैं. दे रीच आउट टू वन कस्टमर एंड देन दे बैक अप. एंड वो सारी पॉइंटर्स डिस्कस होंगे. आई विल समराइज के हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस पे काम करेंगे, सेल्स पे काम करेंगे. एंड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, द फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू कम नाउ. तो गाइस, अब मैं बात करूंगा. अब मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स छेड़ूंगा. मेरा पहला क्वेश्चन आने लगा है सेल्स के ऊपर. ये मेरा क्वेश्चन नहीं, ये बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा है. एंड वन बाय वन हम लोग आप दोनों का पर्सपेक्टिव समझेंगे. उसके बाद आई विल ऑल्सो कवर अप सम ऑफ द थिंग्स एंड आई विल टेल यू व्हाट आई अंडरस्टूड. द फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से सब लोगों ने पूछा है, व्हाट इज सेल्स अकॉर्डिंग टू यू. ये मेरा पहला क्वेश्चन है. इस पे मैं नोट्स लूंगा, सब लोग लेंगे. तो आप बताना कहते हैं आपके हिसाब से सेल्स है क्या. सेल्स इज सो मच, बट उसे थोड़ा सा मैं 3-4 पॉइंटर्स में वाइंड अप करूंगी फॉर यू गाइस. सबसे पहले सेल्स इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर. नो योर कस्टमर टू nth लेवल, टू दिस लेवल दैट यू नो कि जब आप जाके उसे कुछ बताने वाले हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बारे में, तो वो क्या रिबटल्स देगा, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या हैं, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसके लिए, where do you fit in their life. So you really need to know your audience so well. Okay. Second is being persistent. You have to be out there. You have to keep reaching out to people. Follow up is a game changer in sales, guys. I've worked for 8 years, 9 years. I've seen people who have been great with follow ups are the great sales people. So jitna better, jitna timely follow ups aap karoge, you will see an increase in the number of conversions through the complete setup. 100% this will happen. एंड थर्ड, जो मैं सबको बोलती हूँ, सेल्स इज अबाउट बीइंग हार्ड स्किन, बीइंग शेमलेस. जितना आप इजी होगे ना नो सुनने में, उतना कंफर्टेबल हो जानी है सेल्स आपके लिए. बी ओके टू हेयर नो 10 टाइम्स इन अ डे. बी कंफर्टेबल. इट इज ओके. कोई नो बोल रहा है, इट्स परफेक्टली फाइन. बी शेमलेस. बी आउट देयर. नो बोलने के बाद भी आपको उसे किसी ना किसी तरीके से बताना पड़ेगा व्हाई दिस प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट. अगर आप एक्चुअली अपने प्रोडक्ट में बिलीव करते हो, अपने आप में बिलीव करते हो, you will still have to place yourself in a way that know this product is going to make a change in your life. So this is for me is sales. So I will cover up end में मुझे क्या पता लगा and वो summary. And Ashima, coming to you, what is sales according to you? So according to me, as I mentioned earlier as well, so sales is all about value creation. अगर आपके पास कोई, क्योंकि nobody is having all the time कि आपके पास सारी बातें सुनेगा वो, तो अगर वो आपको, आपने बहुत रिक्वेस्ट किया, आप पर्सन से आपने उसको रीच आउट किया एंड दे आर टॉकिंग टू यू, तो अगर वो आपको ये भी बोलते हैं ना कि ठीक है आशिमा, आई जस्ट हैव 2 minutes, यू टेल मी व्हाट यू नीड टू डू, तो यू हैव टू इंश्योर कि आप उस 2 minutes की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करके यू आर गिविंग द वैल्यू, irrespective that person is talking to you post that or not, but at least your name stays with them. कि हाँ, मेरे से आशिमा करके एक बंदी ने बात करी थी और मुझे उसने ये बताया था एंड दैट इज हेल्पिंग मी. शायद वो आज हेल्प करे या कल हेल्प करे, बट दैट विल हेल्प मी. सो वो एक वहां से जो रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, वैल्यू एडिशन होती है, that should be a takeaway. Always should be a takeaway if somebody is talking to you. That is how the smart people build the relationships, right? तो अगर वहां पे उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए फालतू में टाइम वेस्ट हो गया, फोन ही क्यों उठाया मैंने या समथिंग. So that should not be a case. So value addition is the first point. Second, कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास 2 मिनट है तो 2 मिनट में बात क्या करनी है. So KYC, know your customer, is the most important thing, as Atya also mentioned. कि वहां पे आपको पता होना चाहिए कि मैं बात करके उस बारे में बात नहीं करूंगी जो ऑलरेडी उसके पास सॉल्व है. जो सॉल्व नहीं है, दैट शुड बी माय स्टार्टिंग पॉइंट, ताकि उस बंदे को इंटरेस्ट तो हो मेरे से बात करने के लिए. Got it. So these are two major things that I feel is important for sales. Got it. I think there is a mutual. Yes, Atya, you are going to add One something. more thing, one more thing that I always tell my team, कि जब आप सेल्स कॉल पे जा रहे हो ना, सेल करने मत जाओ. Right. Don't go to sell. Okay. Be a problem solver. Do consultative sales.
आप उसकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओ, बिकम अ फ्रेंड, बिकम अ कंसल्टेंट, डोंट बिकम अ सेल्स पर्सन। लोगों का एजेंडा होता है इस कॉल पे जा रहे हैं, ये तो क्लोज करना है, यहाँ से तो मुझे पैसे चाहिए। उस एजेंडा के साथ अगर आप किसी से मीटिंग करने जा रहे हो, आपको कभी वो पैसे नहीं मिलने वाले हैं। डोंट गो टू सेल, दैट इज माई एजेंडा ऑलवेज। I think I totally align with that because uh, in the last 3-4 years I've done a lot of sales, and I totally get you because यहाँ पे मेरे भी points aligned हैं आपके. The one thing is which is mutual के you know your customers, because being from UX background also जब हम product design करते हैं, the goal is to understand the customer and their pain points, जो आपने यहाँ पे बोला भी, and secondly जो आपने ये last में बोला है, don't be a salesperson. तो मैं हमेशा I also talk with my team कि यार तुम सेल मत करने जाओ, तुम उनको वैल्यू दिखाने जाओ. So I think Ashima also is aligned on that. So the first pointer which I learned is कि know your customer. That is the very important part. That's the first takeaway. Second, you don't have to be a salesperson, become a consultant. And यहाँ पे और अब इसको आगे थोड़ा ड्राइव करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस आने लगे. तो गाइस अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि सेल्स जो है पहले ड्राइव होती थी ऑफलाइन. जनरली हम लोग क्या करते थे, डोर टू डोर करते थे, या फिर रिटेल स्टोर से करते थे. बट आजकल मैं देख रहा हूँ कि मॉडर्न ट्रेड जो है वहाँ पे ऑनलाइन सेल्स हो रही है. तो आई वुड लव टू अंडरस्टैंड आशिमा कि अगर आप मुझे ये बता पाए कि दोनों में कौन से चैनल्स हैं जिसको यूज कर सकते हैं, एंड प्लस दैट कि कौन सी चीज कहाँ बिक सकती है. तो इफ यू कैन हाईलाइट दैट तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल. श्योर श्योर श्योर. सो जैसे अभी ना लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मुझे ऑनलाइन के साथ चलना है कि ऑफलाइन के साथ चलना है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन नहीं रहा है, इट इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. तो अगर आपको आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें लुक एंड फील, टच, एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट, तब आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में सारे मैटर्स में जाना होगा. वी कैन डिस्कस इन डिटेल कि ऑनलाइन में क्या चैनल्स होते हैं, ऑफलाइन में कैसे होते हैं. बट अगर आपका प्रोडक्ट ही ऑनलाइन है, दैट इज एन एक्सपीरियंस, दैट इज अ सर्विस, देन यू कैन अगेन गो अहेड विद ऑनलाइन मेजॉरिटी. उसमें आपको ऑफलाइन में इतना ज्यादा जरूरत नहीं है. जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, OnePlus introduced its phone which is a product. तो उसने स्टार्ट ऑनलाइन से किया था, बट नाउ इट इज ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, एंड दैट वी कॉल एज ओमनी चैनल. Yeah, राइट, ओमनी इज प्रेजेंट एवरीवेयर. exactly. राइट, तो वो वहां पे आया. बट अगर मैं सर्विसेज की बात करूं, जैसे जसप्रीत में अगर आपकी बात करती हूँ, इफ आई वांट टू एनरोल फॉर अ फाइनेंस कोच, राइट, फॉर अ फाइनेंस कोर्स कि मुझे ट्रेडिंग सीखना है, राइट, तो अब उसके लिए अगर आपके पास एक ऑफलाइन ऑफिस नहीं भी है फॉर मी टू गो एंड लर्न द क्लासेस और somebody is teaching me over the blackboard, it is good. ठीक है, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी अचीव कर सकती हूँ वो चीज. Yeah. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस क्या, व्हाट यू वांट टू ऑफर. Yeah. सेकेंडली, अगर मैं ऑनलाइन ऑफलाइन की बात करूं, तो ऑफलाइन में बहुत सारी चीजें होती हैं. आपको एक एस्टैब्लिश ब्रांड के अंदर अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस करना है, या फिर आपको खुद का ब्रांड बिल्ड करना है, खुद के स्टोर्स लाने हैं, या फिर आपको एक कोई जो मॉम एंड पॉप स्टोर्स होते हैं उसके अंदर ही सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा देना है कि ठीक है आप बेच दो. तो वो आपके ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का ब्रांड और किस टाइप का कस्टमर है आपका. Yeah. ऑफलाइन, सो अगर मैं ऑनलाइन के बारे में बात करूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे चैनल्स आ जाते हैं. आपको वेबसाइट के थ्रू जाना है, सोशल मीडिया के थ्रू जाना है, मार्केटिंग में जाना है, कम्युनिटी में जाना है. वी कैन हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन अराउंड इट. Okay. So what I learned was कि यहाँ पे आपने बोला कि first you have to decide what is your service and राइट then decide कि online and offline में से कहाँ जा सकते हैं. तो राइट. उसके बाद आपने different channels बोले, and Atiya, I'll directly come to you now. The question for me is जैसे इन्होंने बोला website, social media and all that. So for me, can you just highlight some of the top channels online which you think can work for us? कि for as a end user, जैसे मैं यहाँ पे आपका देख रहा हूँ, तो मुझे एक प्रोडक्ट को बेचना है ऑफलाइन. जैसे उन्होंने कवर किया काफी चीजें, ऑनलाइन उन्होंने हाईलाइट किया, बट आई वांट अ हायरार्की ऑफ अ चैनल्स कि क्या लग रहा है आपको कि ऑनलाइन किस मीडियम से हम लोग बेच सकते हैं. इफ यू कैन हाईलाइट दोस थिंग्स. श्योर. देखो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, इफ यू आर अ बिगनर, तो यस. सबसे पहले तो जो लोग बैठ के इंस्टाग्राम पे डीएम का रिप्लाई कर रहे हैं और हर एक बंदे को डीएम पे प्राइजेस भेज रहे हैं और उस सब मैनुअल कॉन्वर्सेशंस में पड़ रहे हैं, वहां से बाहर निकल जाओ प्लीज. हैव अ वेबसाइट फॉर योरसेल्फ एंड हैव अ पेमेंट गेटवे एंड सिस्टमाइज योर कंप्लीट सेटअप. पूरे से सेटअप को ना ऑटोमेट कर लो. जो आप इतने एनर्जीज लगा रहे हो ना इन सब मैनुअल कामों में, उससे बाहर निकल जाओ. सेकंड, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट.
किसी भी प्रोडक्ट में हो, किसी भी सर्विस में हो, टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट, टॉक अबाउट योर कंटेंट। जितना ज्यादा ग्रोथ आपको ऑर्गेनिक से मिलेगा ना, उतना आपको पेड एड्स में पैसा खर्च करके भी नहीं मिलेगा। पीपल टुडे वांट टू सी द रॉ एंड अनफिल्टर्ड वर्जन ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन। नॉट जस्ट टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट। अगर आप एक परफ्यूम बेच रहे हो, अगर आप एक कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसकी जर्नी दिखाओ। आप साड़ी बेच रहे हो, उसकी जर्नी दिखाओ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट किया, एक ब्रांड स्टोरी बिल्ड करो। आप क्यों आप ये कर रहे हो, पीपल नीड्स टू कनेक्ट विद यू इमोशनली ऑन सम एंगल। दैट्स व्हेन द कंप्लीट ब्लो अप वुड हैपन फॉर यू। सो ओके, वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है आज सो के टाइम में। जैसे आपने बोला कि एक वेबसाइट हो गया, उसके बाद आपने बोला कि कंटेंट क्रिएट करो, स्टोरी टेलिंग। तो जस्ट इन नेक्स्ट 30 सेकंड आई वुड लव टू अंडरस्टैंड, अगर मुझे कंटेंट जनरेट भी करना है, राइट, हम्म। तो मैं कहाँ पे करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, किस प्लेटफॉर्म से, फॉर एग्जाम्पल? डिपेंड करता है कि आपका मार्केट टीजी क्या है, टारगेट ऑडियंस कौन है। सो ओके, अगर आपका टारगेट ऑडियंस है somebody who is between 20 years to 35 40 years, maybe maximum 35, go on Instagram. ओके, अगर आपका टारगेट ऑडियंस थोड़ा beyond 45 है, then Facebook is the marketplace for you. Facebook is a hit. आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स आज भी फेसबुक पे बैठे हैं, वो आज भी वहां पे सारी चीजें देख रहे हैं। हम लोग शायद फेसबुक पे नहीं आज के टाइम में। सो इट डिपेंड्स कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसका एज सेगमेंट क्या है। डिपेंडिंग अपॉन दैट चूज ईदर ऑफ दीज सेगमेंट्स। नाउ अगर आप B2B बिजनेस में हो, अगर आप बिजनेस टू बिजनेस सेल कर रहे हो, आप सर्विस सेगमेंट में हो, तो आप लिंक्डइन पे जाओ। लिंक्डइन पे जस्ट गो आउट, मेक कनेक्शंस, कनेक्ट विद पीपल, tell them about your product. So you'll have to do a lot of outbound on LinkedIn. LinkedIn पे पहले आपको एक नेटवर्क ग्रो करना पड़ेगा। सो जी, इट टोटली डिपेंड्स कि तीनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए वर्क करेगा। गॉट इट, थैंक यू। सो आई गॉट इट कि यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन गेम काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसे आशिमा ने पहले कवर किया, वेबसाइट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वेबसाइट होगा तो आप काफी चीजें ऑटोमेट कर सकते हैं, दैट इज वन थिंग। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन कपल ऑफ सेकेंड्स, तो मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन एक चीज है जो बहुत लोग अनकंफर्टेबल है, नहीं करते हैं। वो बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है। आई थिंक यू शुड गो आउट, बना के देखो, एंड नथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट। स्टार्ट समवेयर, धीरे धीरे टाइम परफेक्शन की ओर चलेगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अशिमा, यू वांट टू से समथिंग? Yeah, so I was trying to add one more thing here. A lot of people do not feel like कि मुझे content create करना है because they don't feel कि I'm having that confidence and all of that. So you या can always start creating the content even with a faceless accounts क्या है? over the LinkedIn, over the Facebook, over the Instagram. Everywhere you'll find a lot of people who are not showing their faces because they're not comfortable with it. ओके, So that is another thing that could be discussed. या आई ऑल्सो वॉच समटाइम्स, आई हैव सीन मेनी चैनल्स हैविंग thousands ऑफ व्यूज, एंड आई थिंक टुडे जो एआई आ चुका है, तो उसने Exactly. सब कुछ ही ऑटोमेट कर दिया फेसलेस चैनल। Right. दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंटर विच आई विल हाईलाइट। सो Right. दैट्स अ ग्रेट इनसाइट के फेसलेस चैनल्स कुड बिकम वन ऑफ द मीडियम। अगर ज्यादा Exactly. शर्म आती है रिजेक्शन से या समथिंग, तो वी कैन Right. यूज दैट आल्सो। ग्रेट, Exactly. You can start with it and then you can build your personal brand. या ऑन इट, दिस इज नाउ द स्टोरी इज गेटिंग बिल्ड, बिकॉज अब मैं आगे जाके इनको डॉट्स को कनेक्ट करूंगा एंड विल फिगर आउट कि व्हाट इज द रूट मैप। ग्रेट, सो आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sure. तो गाइस, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि सेल्स तो करनी है, तो मुझे भी बहुत चैलेंजेस फेस होते हैं। मुझे तो यही डर लगता रहता है, सेल्स करूं कैसे। मतलब जब मेरे को कोई चीज बेचनी होती है, तो जस्ट बिफोर सेल समटाइम्स आई एम नर्वस। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस? अतिया, आई विल कम टू यू, कि अगर आप मेरे को बता सकते हैं एट अ इंडिविजुअल लेवल, क्या चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं या आपने फेस किए, विच कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। देयर आर हेल लॉट ऑफ चैलेंजेस, आई टेल यू, बट मैं इनको सेगमेंट करूंगी। सबसे पहला और जो सबसे मेजर चैलेंज है गाइस, मुझे सब लोग बोलते हैं स्किल सेट का चैलेंज है। आई टेल यू वन थिंग, ये ना माइंड का ब्लॉकर है। सबसे पहले लोगों को एक इशू है, मुझे सेल्स नहीं करनी, मुझसे सेल्स होगी ही नहीं, मेरे को जाके किसी से पैसे नहीं मांगने। तो पहले तो इस ब्लॉकर को, इस हेजिटेशन को दिमाग से निकाल दो। हम लोग हर टाइम हर मिनट अपनी लाइफ में सेल्स करते आ रहे हैं। आप अगर जॉब भी जाते हो ना इंटरव्यू के लिए, यू आर सेलिंग योर सेल्फ। यस, तो आप एट एवरी मोमेंट यू आर सेलिंग योर सेल्फ। एक कितना भी बड़ा सीईओ, फाउंडर, एप्पल के जब प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं तो स्टीव जॉब्स आके वो प्रोडक्ट्स दिखा रहा है आपको, वो इसीलिए दिखाता है ना, दैट यू गो एंड बाय। सेल्स, एवरीबody, द वर्ल्ड रन्स ऑन सेल्स, so come out of that segment first of all. Then second is, not everybody is your client.
इसको लिख के रख लो कहीं पे अपने पास. People are like, मैंने 10 लोगों को रीच करा, मैंने 20 लोगों को रीच करा, I nobody got back because they are not your client. You don't know who your client is. Yeah. And even after you know who your client is, there are certain percentages in sales, conversion rates होते हैं. अगर आप 100 लोगों को रीच करोगे तो शायद 10 या 12 लोग ही आपको पेमेंट करने वाले हैं, हर कोई आपको पेमेंट नहीं करने वाला है. There are so many factors involved जब sales होती है तो not just your product, it is also about that person. वो बंदा अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में कहाँ है, उसके क्या पॉकेट्स हैं, वो क्या विजन प्लान कर रहा है. There is so much involved. So don't think कि इस बंदे ने मुझे पे नहीं करा या मैंने 4 लोगों से बात करी और मेरा प्रोडक्ट इज नॉट अ राइट फिट फॉर देम, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ऑडियंस ही नहीं है. सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, वेयर योर ऑडियंस इज प्रेजेंट एंड हु एग्जैक्टली इज योर ऑडियंस. इसके बाद आता है स्किल सेट. मतलब ये सॉल्व करने के बाद हम स्किल सेट पे आते हैं. जब आप ये 2 चीजें सॉल्व कर लोगे तब आप स्किल सेट पे आओगे. How to take the calls, how well you need to be prepared when you're going on a sales call. Just don't go and talk anything. There has to be a complete sales pitch. There has to be a complete sales deck that you have to present to people. Don't just talk, show it to them. लोग ना आजकल visually बहुत appealing हो गई हैं सारी चीजें. सबके attention spans कम होते जा रहे हैं और जो भी चीज दिख रही है बस वो बढ़िया लग रही है सबको. So always be prepared with a deck. The tonality, the body language, the confidence that you have on that call is going to take you places. So ये major challenges हैं जो लोगों को आते हैं while they are pitching their product or while they are finding the right customer for themselves. So यहाँ पे मुझे पता लग गया, come out of the comfort zone is one point which I have written from your. Then you don't have to sell everyone. That's Yes. another. And skill set comes at the last, which we thought will come at the first. Got it. Yes. So these are the 3 challenges. Now, आप मानोगे नहीं जसप्रीत, I've seen people with lowest skill set but highest intent performing the best and better than people who had the highest skill set. ये मैंने अपनी जर्नी में देखा है. I think one is sitting in front of you. I never studied sales, but I think I can do sales better than many people. I've done in the last 4 years, but I totally agree with you कि skill set comes at the last. But my perception before I jumped to the sale was something different. I thought मुझे sale नहीं आता है, but eventually जब मेरे को 3-4 साल हो चुके हैं तो अब मुझे लगता है मैंने sale सीखा ही कब था और मैंने Exactly. सीखा ही कब है. हाँ, right. Yeah, now I feel I never sold anything. I always said this will be the value if you come. If you don't come, this is the thing you can lose also. But Exactly. I totally get. And And now, yeah, because you said this ना, another very important thing is that you जब भी आप किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में या आप कुछ भी पिच कर रहे हो ना, don't pitch it as a cost to their lives. Pitch it as an investment. That if you invest into this, this is what you are going to get. हमेशा अपनी conversation को आप end result पे focus करो कि ये मिलने वाला है. This is what you get. This is the outcome. This is the change that you will get in your life. तो जितना ज्यादा आप उसे investment दिखाओगे, people are willing to invest, but people are not willing to take a cost to their business or to their lives. got it. Yeah. Another insight, pitch it as an investment, not as a sale, because you already told us something. Become a consultant, not a salesperson. I remember that. So got it. So these are the challenges which I can see now. ये मेरे को नहीं, सबको आते होंगे, no doubt in that. Now, Ashima, I have a question for you. Now, आतिया ने challenges बताए. Right. अब आप solution दे दो. कि अब मैं Sure. solution कहने का मतलब कि आप थोड़ा सा help कर दो how to overcome these kind of challenges. इससे Right. there could be n number of challenges, but I would say how do you overcome the challenges, and that will help us to understand more. श्योर थिंग, श्योर थिंग. सो जैसे फर्स्ट चैलेंज अत्या ने बताया कि एक माइंड ब्लॉकर है कि मुझे सेल नहीं करनी है. Yeah. एंड आई थिंक वो हम सब में था. जब स्कूल कॉलेज जब कॉलेजेस के अंदर प्लेसमेंट्स के लिए भी कंपनीज आती थी तब पीपल वर लाइक सेल्स की कंपनी में तो मुझे नहीं बैठना, बाकी कोई और प्रोफाइल में आई वुड बी विलिंग टू सिट. Yeah. सो दैट इज वन थिंग दैट इज देयर. बट एट द सेम टाइम अगर हम उसको सेल अगेन माइंड गेम, सेल की जगह उसको ये करें कि आई एम प्लानिंग टू हेल्प समबडी ओवरकम अ प्रॉब्लम वाया प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन इज व्हेन यू विल नॉट फील कि ये मैं सेल कर रहा हूँ. सो वो माइंडसेट थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा कि मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लोगों को हेल्प कर रहा हूँ. एंड वी ऑल लव हेल्पिंग ईच अदर. अगर मेरा कोई फ्रेंड मुझे फोन करता है, अगर मेरे को अभी पूछना है कि मुझे लैपटॉप कौन सा परचेज करना है, लेट्स से सपोज, सो आई विल कॉल अ फ्रेंड कि यार ये 3 ऑप्शंस है. अब वो मुझे सारे प्रोज एंड कॉन्स बता रहा है टेक्निकली. वो मेरे से पहले पूछता है कि करना क्या है, कॉल पे बात करनी है, एमएस ऑफिस चाहिए, ओरेकल चाहिए, क्या चाहिए. So he will ask me a lot of questions and then he will guide me. So that is what he is doing for me. He is doing the sales,
बट नॉट इन अ कैपेसिटी ऑफ सेलिंग इट, बट जस्ट हेल्पिंग मी. तो वो सेम चीज मैं अगर विजय सेल्स पे जाती हूँ तो द कंसल्टेंट विल आल्सो डू द सेम थिंग, बट मैं उसको लगेगा कि वो सेल कर रहा है, Yeah. बट वो सेम चीज शायद मेरे भाई ने भी सेम करी मेरे साथ, Got राइट? सो दैट इज वन थिंग, यू आर नॉट सेलिंग, यू आर जस्ट हेल्पिंग. Okay. सेकेंड, जब उन्होंने बोला था कि लोगों के पास ना नो सुनते हैं एंड देन दे डू नॉट नो हाउ टू डू दिस, तो ये मेरे एक अर्ली करियर के अंदर मेरे एक मैनेजर ने मुझे बताया था, बिकॉज मैं आगे रो देती थी कि लोग मेरे को मना कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, आई हैव नेवर सीन दैट, मतलब मैं पर्सनली ले जाती थी चीजें. तो उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई थी, आशिमा, कि एक ना मैथ्स होती है, उसको रट लो, जिंदगी में काम आएगी. 1:10 इज ऑलवेज योर कस्टमर. पहले 9 लोग तुम्हें मना करेंगे, तब तुम्हें 10th बंदा पे करेगा. सो आई एम लाइक, अच्छा है मुझे नो बोलते रहो ताकि मैं 10th के पास जाऊं. अगर मैं 9 लोगों से बात नहीं कर रही हूँ जो मुझे नो बोल रहे हैं, मैं 10th यस वाले के पास पहुंच ही नहीं पाऊंगी कभी. सो दिस इज जस्ट अ मैथ्स, क्योंकि वो जैसे लॉजिकल बीच में आते थे तो आप इमोशंस को थोड़ा साइड लाइन कर देते हो, यू स्टॉप टेकिंग थिंग्स पर्सनली. Got तो it. आई एम लाइक, हाँ मुझे बोलो बोलो बोलो, सो दैट आई नो दैट 10th person is my customer. Yeah. So that is how it is helping me. मतलब again mindset, but attached with some logical. And we have seen a lot of people generally conversion rates इतने ही रहते हैं. Yeah. जैसे अली ने भी conversion rate बताया था कि not every customer is your customer. It is not because they are not willing to, मतलब बहुत सारे factors होते हैं sales के अंदर. It is not आपने बता दिया and they buy it. No. Yeah. उनके बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, एज अ कस्टमर वो बताते भी नहीं है Okay. कि उनका ये पेन पॉइंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि वो बात कैसे निकलवानी है, दैट इज अनदर, मतलब वो स्किल सेट में आता है, बट यू नीड टू नो कि आपको अपने कस्टमर से बात कैसे खुलवानी है. यू Got नीड टू नो कि वो, मतलब आपको कस्टमर को अपना वल्नरेबल साइड दिखानी चाहिए आपके सामने, और वो आपको कंफर्ट क्रिएट करना पड़ता है पहले कि दे Okay. आर वल्नरेबल टू दैट एक्सटेंट कि दे टेल यू एवरीथिंग. So one question on rejection I will add on. हम्म. You said कि you used to cry also sometime when राइट. rejection happened, and then your teacher was an inspiration, told you 1/10 is a. But again, how long it took for you to accept this? Because 1/10 9 लोग नो बोलते रहेंगे तो आपको ये यहाँ तक आने में कितना समय लगा? Time in years, in months, if you can tell राइट. us. सो मतलब ये चीज एक्सेप्ट करने में कि मुझे लोग मना कर रहे हैं, उस एक्सेप्टेंस में टाइम था, बट फिर जब ये वाला हैक मिला, दैट इज व्हाट आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग फ्रॉम द नेक्स्ट डे. Okay, got it. So as a beginner, अगर मैं अभी कॉलेज से पास आउट हो रहा हूँ, राइट. तो आई थिंक अतिया एंड आशिमा, सेल्स का तो एक ऐसा परसेप्शन है कि आई हैव सीन पीपल, एचयूएल कंपनी है, कौन सी है, सेल्स नहीं जाना. नहीं जाना. राइट. तो दैट्स द फर्स्ट आंसर आई से. तो क्यों नहीं जाना है, वो मुझे स्टोर में खड़ा रखेंगे. हाँ. तो आई जस्ट लिसन, आई एम अ लिसनर मोर ऑफ देयर. सो यहाँ पे मुझे ये है कि एज अ स्टूडेंट अगर मैं निकलता हूँ, तो जो आपने ये बोला ना कि यू हैव टू एक्सेप्ट द रिजेक्शंस, तो अगर मैं ये बात करूं कि एम आई करेक्ट, जो मैं बोलने लगा हूं, द परसेप्शन इज कि आपको जैसे आप पास आउट होते हैं, यू एंटर द रियल वर्ल्ड, इट विल टेक एटलीस्ट 1 year or 2 years to get good in sales. In the starting, the track will not be very smooth for you. राइट. Is it राइट. okay, 1 or 2 years perception? Sure, sure. So I'll add one story here. Yeah, So this is actually my personal story. yeah, So मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स मतलब कंटिन्यूएशन में किया था विदाउट वर्क एक्सपीरियंस इन बिटवीन. yeah. तो अब मास्टर्स कर लिया ना, उसके बाद ऐसा होता है इंडिया में कि एमबीए कर लिया, हाउ कैन यू टेल मी व्हाट टू डू, मतलब वहां पे वो एक थोड़ा ईगो क्लैश आता है. सो आई जॉइन माय कंपनी, और क्योंकि मेरा पीपीओ था, प्री प्लेसमेंट ऑफर, तो आई वाज नॉट, मतलब उनके एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते थे, तो मैं अपग्रेड के साथ मैं प्लेस हुई थी. तो वहां पे फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु डज नॉट नो, आपने देखा होगा बड़े कॉर्पोरेट्स के बाहर ना कैनोपी लगी होती है, Yeah, ma'am, I वो get. टेंट लगा के वो बैठे होते हैं वहां पे, वेयर दे आर शेयरिंग अबाउट देयर कंपनी. आई वाज रिस्पॉन्सिबल टू गो एंड सेट अप कैनोपीज. मतलब आप सोचो, मैंने बिरला से एमबीए करके मैं ये कर रही हूँ. सो मतलब वो एक वो था. एंड आई यूज्ड टू कॉल माय डैड कि पापा ये तो मैं नहीं कर रही हूँ, पैसे वैसे जो भी है वेस्ट है, Yeah, मैं घर आ रही हूँ, मेरे से ये नहीं होगा, दिस इज नॉट व्हाट आई साइंड अप फॉर. एंड बट माय फादर वाज लाइक, नहीं, दिस इज योर जॉब, यू हैव टू डू इट. एंड आई डिड इट. और उसके बाद मैं लोगों को लेजिट उसको रोकती थी. लोग अपने लंच टाइम पे बाहर निकल रहे हैं, खा खा के अपना आपस में बात कर रहे हैं, और मैं जाके उनको रोक देती थी कि हाय जसप्रीत, आई जस्ट नीड 2 minutes ऑफ योर्स. yeah. और वो मुंह पे मना करते थे ऐसे मेरे पे एकदम ऐसे कि
एक्सक्यूज मी, कांट यू सी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब बहुत रूडली. एंड दैट इज ओके, बट मतलब वो बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंसेस थे. आई डिड दैट फॉर फर्स्ट 6 months ऑफ माई करियर. Okay. बट उसके बाद आज मैं एलिवेट इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि अब मेरे को डर ही नहीं लगता, लोग ज्यादा मना ही तो करेंगे मेरे मुंह पे. Okay. सो This वो insight. चीज ने मुझे इतना ग्रो कर दिया है ना कि आई हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ दोज रिजेक्शंस. मतलब आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो शायद मेरे फ्रेंड्स को आज पता लगेगा मैं क्या कर रही थी बैंगलोर के अंदर. Got उनको it. पता भी नहीं था मैं बैंगलोर में कर क्या रही थी. Yeah. I सो can completely relate. या सो दैट इज हाउ कि ठीक है, समटाइम्स इट इज वही है, सोने को तपना पड़ेगा तभी वो सोना बनेगा, वरना नहीं होगा. दैट इज द साइंस, दैट इज द नेचर. I can relate because I work out a lot. So my trainer told me that, if you want to lift very heavy, just once you have to get the feel of heavy weight. Although I know what we used to do is we can't lift some XYZ weight. That's more 30% more than capacity what I can do. But when I used to lift it once just to feel it, then when I go to lighter weights, that is what I can learn from you कि जब आपने धूप में कैनोपीज में काम कर लिया, जहाँ पे मुझे भी लगता है यार क्यों मेरे पीछे पड़े हो यार, लाइक राइट. टोटली कैन रिलेट. और मुझे तो फील भी होता था यार, आई फील एम्बैरेसमेंट कि मैं क्यों खड़ा हूँ. दैट वाज माय एग्जैक्टली. माइंडसेट इन द स्टार्टिंग. आई कैन राइट. टोटली. तो फिर आगे वो अतिया के पॉइंट पे आ जाता हूँ, तो उन्होंने शेमलेस तो बोला ही था स्टार्टिंग में, तो उस पे तो फिर वो वहीं पे आ जाता है. बट आई कैन टोटली रिलेट के सेल्स इज नॉट अ सिंपल थिंग. बट आई थिंक आई टेल माई टीम दैट सेल्स पीपल रन द वर्ल्ड. तो मैं राइट. एक्चुअली बोलता हूँ सीएस, जिसको सब लोग समझते नहीं कुछ, बट ट्रस्ट मी, those are the people who are my best friends. Whether it's a real estate agent, it's a broker, it's a CA, they are my best friends. But people won't understand but I think I got a lot of insights on this part also. Now, one last question before I wind up the episode one. At For example, I know that sales is something which we have to do, but if you have to tell this question, I have to ask Atia, because you have more experience in this sales part. I'll ask you one question. This is the last question. If I have to learn 3 things to be a good salesperson, only 3 things, what are those? And अगर आप वो highlight कर देंगे 3 part, क्या, ताकि जो viewer देख रहा है, it could be a business person who is going to start the business, it could be a student who wants to enter the sales. कोई ऐसी 3 चीजें बता दीजिए जो जिस पे मैं आज काम करना स्टार्ट तो करूं, उसके बाद 6 months बाद रिजल्ट आए, 1 साल बाद, पर एटलीस्ट आई वांट टू स्टार्ट. तो अगर आप 3 चीजें मुझे कोई हाईलाइट कर दें. श्योर श्योर. तो देखो, सबसे पहले इफ यू आर somebody who wants to build a career into sales, or who's starting up into this domain or building a business from scratch, build कर रहे हो business, तब भी आपको सेल तो करनी है, अपने प्रोडक्ट के बारे में जाके बात तो करनी ही है. तो सबसे पहले तो ना मार्केट रिसर्च करना, प्रोडक्ट रिसर्च करना, कंपटीशन एनालिसिस करना, ये सीखो आप. अभी मैं बात करूंगी हार्ड स्किल्स की. मैं यहाँ पे जो माइंड ब्लॉकर्स है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, वो सब हम कर चुके हैं टू सम एक्सटेंट. अभी इट इज मोर अबाउट, अगर आपको एक प्रोडक्ट बेचना है तो उस प्रोडक्ट को आप किस लेवल पे रिसर्च करोगे, अपने टारगेट ऑडियंस को कैसे रिसर्च करोगे, हाउ विल यू फाइंड योर टारगेट ऑडियंस, एंड व्हाट प्लेसेस यू कैन फाइंड योर टारगेट ऑडियंस. इन सब चीजों की रिसर्च एंड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब सेल्स में ना, प्री सेल्स में बहुत जबरदस्त R&D लगती है, तब जाके सेल्स होती है. तो वो रिसर्च आप किस लेवल पे कर सकते हो, कैसे वो एनालिसिस आप डेवलप कर सकते हो, अपने कंपटीशन को कितना बेटर आप समझ सकते हो, हाउ डीप डाइव कैन यू इनटू योर कंपटीशन, कितना आप उनके बारे में खोल के समझ सकते हो, ताकि जब आपका कस्टमर आपसे कंपेयर करे, वो बस नाम बोले आपकी कंपटीशन का, और यू शुड बी लाइक विद बुलेट पॉइंट, खट खट खट, ये 5 चीजें, आई एम बेटर देन माई कंपटीशन इन दीज 5 ways, प्रूव मी रॉन्ग. मतलब इतना प्रिपेयर्ड आप होने चाहिए. सो दिस लेवल ऑफ रिसर्च यू शुड लर्न. दैट्स वन पार्ट ऑफ इट. Now the second is, there are lot of courses out there about sales calls, confidence, tonality, body language that you need to have during sales meetings, communication skills. मतलब ये सब चीजों के लिए इतने courses है ना मार्केट में. और ये this is the digital world, आपको घर से हिलना भी नहीं है. You can sit at your home and learn these skills, and then start replicating these skills and start doing these skills with a friend. अपने एक फ्रेंड को बिठा लो और डेमो कॉल्स करो, मॉक कॉल्स करो. जितना ज्यादा आप ग्राउंड लेवल पे जाके इन चीजों को you will do mock, that's where you learn. So these are the 2 skills I think which are very important for somebody to learn, अगर उसको start करना है तो एकदम ग्राउंड लेवल पे. I think I will add some of the pointer before I wind up, because ये जो अपने मार्केट रिसर्च और बोला ना, तो आई थिंक मैं आज भी करता हूँ.
बिकॉज सेल्स स्टार्टिंग में भी किया था, बट आई थिंक मैंने एक जगह पे सुना था एट एवरी लेवल देयर इज अ न्यू डेविल। Yeah. सो क्या जब आप थोड़ा सा स्केल करते हो कुछ और प्रॉब्लम आती है, एंड आई थिंक मैं मार्केट रिसर्च पे खुद बिलीव करता हूँ बिकॉज माई बैकग्राउंड इज दैट। तो आई मेट सो मेनी पीपल, बट आई टोटली गेट यू। सो यहाँ से मैं इसको पार्ट 1 को क्लोज करूंगा, लेकिन पार्ट 2 में आशिमा एंड अतिया वी हैव टू सॉल्व वन केस स्टडी। तो हम लोग उसमें एक ब्रांड बिल्ड करेंगे कि मुझे एक प्रोडक्ट बिल्ड करना है, नॉट अ ब्रांड। प्रोडक्ट को बिल्ड करके उसके बाद मुझे उसकी सेल्स फनल बनानी। तो आई Sure. हैव टू मेक अ सेल्स फनल फॉर द पीपल हु आर वाचिंग, क्योंकि ये मैं नेक्स्ट वीक पे लेके आऊंगा पार्ट 2 में। तो उसमें आई विल वर्क ऑन वन ब्रांड एंड दैट इज गोइंग टू बी माई पर्सनल ब्रांड विच आई वांट टू बिल्ड। आई हैव मेड अ प्रोडक्ट ऑलरेडी, इट्स इन अ हेल्थ Mhm. इंडस्ट्री, but Okay. I don't know how to sell that. So I am considering myself, I don't know how to sell that. And you two people will come there and you two people will be guide because we don't want to understand lot of theory part. I really want Mhm. to understand now. Let's jump dive, deep dive jump करते हैं उसमें कि problem set को लेते हैं। तो मैं एक supplement brand बना रहा हूँ personally and I need your inputs कि अगर मेरे को from 0 to 1 CR जाना है and I don't want to say 0 to 1 lakh, तो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड 0 to 1 CR के डिफरेंट चैनल्स क्या होंगे। हाउ डू आई रीच 0 to 5 lakhs, 5 to 20 एंड 20 to 1 CR। बहुत तो मजा ये आने वाला अगला प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा जिस पे हम लोग काम करेंगे। एंड सी यू इन द है। नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। तो गेट रेडी विद द एवरीवन जो देख रहे हैं। तो अगले पार्ट में हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे एंड उसका वीडियो नेक्स्ट वीक आएगा, अगेन सेम टाइम सैटरडे 7 PM। थैंक यू गाइस।